Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to solve some numericals related to projectile motion. Dear students, these numericals are very basic in nature and are usually posed there in NEET and JEE. Dear students, let us start here. I will also deal here, dear students, with some concepts. Also, I will do some additional concepts related to projectile motion. Okay, dear students, so listen to me. So I am starting here. That is numerical. The numericals that I am going to discuss related to projectile motion. Okay, dear students, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ projectile motion. See, dear students, concept भी clear हो जाएंगे और numericals भी करेंगे आज के topic में. Okay, very nice. See, that is the first numerical there. Today's first numerical is like this. Very easy numerical, dear student. Start करेंगे ना, start करेंगे किस numerical से start करेंगे. तो बेटा यहाँ मैं numerical लिखूंगा क्या है? If horizontal range is equal to maximum height. क्या बेटा लिखा मैंने? Is equal to maximum height. If horizontal range is equal to maximum height, then what is the angle of projection at that time? Then what angle we have projected the body with the ground at that time? Simply we can say then what is the angle of projection at that time? Then what is the angle of projection at that time? See, dear students, very easy questions. Such questions are posed there in the board exams as well. Okay, dear students, solution इसका क्या आएगा? See, dear students, ऐसे numerical ये है बेटा x और ये है y और यहाँ हमने projectile launch किया with some initial velocity u and that makes an angle of projection theta. Here, dear students, this is h maximum and dear students, this is r. Here, what is given? What is given here? Here, students, it is given that R is equal to H max. That is range. Range is equal to horizontal range is equal to H maximum. But dear students, we should know this is formula based numerical, so we should know about what is, dear students, what is the formula for horizontal range. In case of angular projectile motion, but it is very easy that R is to be equal to is U square sine 2 theta by G. U square sine 2 theta by G is the formula for horizontal range in angular projectile motion, and dear students, H maximum is U square sine square theta by 2G. Very nice. You should remember these things, basic funda. So okay, dear students, because here it is given, so we have to find this theta. Theta here is angular projection or angle of projection. We have to find this. See, dear students, देखो बेटा क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन. तो बेटा ये लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. यहाँ तो यहाँ क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी. मैंने रिपीट किया पॉइंट. यहाँ देखो बेटा क्या है, आप क्या करना है. Now there is a formula sin 2 theta. We know, dear students, that sin 2 theta is equal to twice sin theta cos theta. किसके बारे होती है sin 2 theta? Twice sin theta cos theta. तो बेटा मैं यहाँ क्या लिखूंगा, u स्क्वायर और sin 2 थीटा की बजाय लिखूंगा यहाँ बेटा 2i sin theta cos theta डिवाइड बाई g इज इक्वल टू बेटा यहाँ लिखूंगा u स्क्वायर. तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिखूंगा बेटा. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीनियर स्टूडेंट तो लिखूंगा ना साइन थीटा. अगेन लिखूंगा साइन थीटा. क्यों? साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर डिवाइड बाय जी है बेटा. ओके, वेरी नाइस. तो दिस जी एंड जी गेट्स कैंसल्ड, यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड डियर स्टूडेंट्स. और ये साइन थीटा एक और साइन थीटा कैंसल. तो बेटा क्या रहा यहाँ क्या बचा, ट्वाइस cos थीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट साइन थीटा. तो देयरफॉर बेटा यहाँ क्या आएगा, 2 किसके बराबर आएगा, ये यहाँ डिवाइड करो साइन थीटा, ये यहाँ cos थीटा डिवाइड हो जाएगा. तो बेटा साइन थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर आएगा, tan थीटा. तो देयरफॉर बेटा यहाँ लिखूंगा tan थीटा किसके बराबर, नहीं एक बात यहाँ बेटा देखो क्या, ये 2g है यहाँ 2g है, ये 2g है यहाँ 2g, क्योंकि इसकी फॉर्मूला 2g है डिवाइड 2. तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 2 इंटू यहाँ बेटा ओके जी कैंसिल. तो बेटा यहाँ क्या बचा, ओके एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ी सी गलती रेक्टिफाई करेंगे. देखो बेटा क्या है, यहाँ 2 था, 2 डिवाइड था 2, क्योंकि जो है ना मैक्सिमम हाइट के लिए क्या डिवाइड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. तो मैंने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 2g. जी और जी कैंसिल, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल. तो बेटा यहाँ क्या बचा, और साइन थीटा तो साइन थीटा कैंसिल. तो यहाँ क्या बचा, ट्वाइस cos थीटा. क्या बचा बेटा, ट्वाइस cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, साइन थीटा डिवाइड बाई 2. तो बेटा यहाँ करेंगे ना डिवाइड 1 और यहाँ लिखेंगे इसको, इसके साथ जरा दो ना बेटा,
देखो बेटा ये किसके बाद आएगा, टू टूस क्या आएगा, टू टूस आर 4, लेकिन इस cos थीटा को यहाँ डिवाइड करो, क्या sin थीटा बाई cos थीटा। बात आई समझ में, टू टूस आर 4 तो मैंने यहाँ 4 लिखा बेटा, और ये cos थीटा मैंने यहाँ डिवाइड किया, तो sin थीटा बाई cos थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर 4। आई बात समझ में। अब थीटा निकालना है, तो थीटा आएगा बेटा यहाँ थीटा tan इनवर्स, यहाँ tan यहाँ इनवर्स, जब ये इस साइड में लेंगे tan तो इनवर्स tan इनवर्स 4 किसके बराबर। तो what is the angle between, what is the angle of projection, that is tan inverse 4 क्या है, यहां साफ साफ लिखेंगे tan inverse, ये है 4, angle is 4 here, okay very nice। tan inverse 4 क्या है, tan inverse what is theta tan inverse। और अगर इसका जो है ना टेबल में, अगर इसका हम इसका जो है ना वहां देखेंगे इसका वैल्यू क्या है, वो बेटा नियरली आता है थीटा, थीटा ये नियरली आएगा 75 डिग्री समथिंग लाइक दिस बेटा आएगा, रफली कम्स आउट दिस, लेकिन ये याद रखो ये ऐसी आएगा बेटा, ओके वेरी नाइस, ऐसी कुछ है 4 मिनट, ये है इसका आंसर दिया 75 डिग्री 64 मिनट एंड ऑलमोस्ट दिस, बट यू कैन राइट दिस is the ideal way to write this, okay very nice। See dear student, now I am going to discuss here next numerical, and that next numerical is very important dear student। See dear, अच्छा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन हियर इज लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस, सेकंड न्यूमेरिकल देयर। सी बेटा क्या है न्यूमेरिकल सेकंड जो है ना, यहां बेटा देखो क्या है, अगेन इट इज रिलेटेड टू एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही क्वेश्चन। सी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां होगा ऐसे देखो सी डियर, अगेन क्वेश्चन ये है कि if angle of if a body is projected, if a body is projected with initial velocity 20 meter per second at an angle of 60 degree with the ground level, then after, okay dear students, then after how much time it will take to make an angle, then after how much time it will take that velocity will take, it will take means that velocity that is velocity will take to make an angle of 45 degree with x-axis or ground level with x-axis, that is horizontal level here। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, if a body is projected with initial velocity 20 meter per second at an angle of 60 degree with the ground, that is this is angle of projection, then after how much time, कितने टाइम के बाद it will, that is we will make an angle, that is velocity will make an angle of 45 degree with x-axis। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया है, 1-2 बार आया है नीट में। देखो बेटा क्या है, ये समझ लो ये क्वेश्चन, देखो यहां समझाऊंगा आपको क्या है सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सी डियर, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ground level here, okay dear students, this is your origin as well as point of projection। मैंने ऐसे एक बॉडी प्रोजेक्ट की, I am projecting this with initial velocity, ये u जो है ना u क्या है यहाँ 20 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा कितनी है 20 मीटर पर, दिस इज एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री से 60 डिग्री। देन आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक, सो दैट कि वेलोसिटी वेक्टर जो है ना वो कितना एंगल बनाएगा। यहां देखो बेटा क्या है, थोड़ा लेंगे ऐसे,
then after how much time this velocity vector will make an angle theta, that is theta is equal to 45 degree with what, with horizontal line. ये 45 कब बनाएगा, कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी वेक्टर 45 बनाएगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। न्यूमेरिकल आया समझ में, यहां दिखाऊंगा, देखो बेटा सीडीएस स्टूडेंट्स यहां दिखाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो बेटा क्या है सीडीएस, देखो बेटा सीडीएस स्टूडेंट्स, देखो बेटा क्या है, यहां दिखाएंगे न्यूमेरिकल जो है ना, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। ये ऐसी है, ऐसे क्वेश्चन, देखो बेटा रिपीट करूंगा ये क्वेश्चन क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। यहां ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे, देखो बेटा क्या है, दिस इज हियर, और यहां ये कितना एंगल बनाता है, यू कितना है, यू का वैल्यू कितना है बेटा, यू इज 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, और कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 60 डिग्री, कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री। एंड आफ्टर हाउ मच टाइम दिस वेलोसिटी वेक्टर दैट इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, आफ्टर कितने टाइम के बाद ये एंगल बनाएगा इसके हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना एंगल बनाएंगे, 45 कितने टाइम के बाद क्या एंगल बनाएगा, 45। सी डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी नाइस। I will resolve this here, this u along this, that is u cos theta, and here this component is u sin theta, और बेटा ये v है, v का यहाँ क्या है, v cos 45, क्योंकि जहां 45 बनता है वो वहां cosine 45, और यहाँ बेटा इस v का कौन सा कंपोनेंट है, v sin 45, okay। I will now very easy way is that I can take separate equations of motion along x-axis and I can take separate equations of motion along y-axis. This is very easy because I have resolved this into components here, x component, and here y component, here x component, and here y component. These are all components of velocity. Okay, very nice. This is initial velocity, but this is final velocity, and after time t के बाद ये 45 बनाता है ये velocity vector इसके साथ, horizontal के साथ। लेकिन हमें ये टाइम मालूम करना है, क्या मालूम करना है, इफ दिस इज दिस, और हमें टाइम मालूम करना है। देखो क्या है, देखो बेटा क्या है। नो डियर स्टूडेंट, सी नाउ यूजिंग, पहले क्या यूज करेंगे, since we know that horizontal component remains constant, so ये ux है बेटा, और ये क्या है, ये vx है, horizontal component। vx is equal to ux, why, because horizontal component, since horizontal component remains constant, vh remains constant, horizontal component remains constant, therefore क्या आएगा यहाँ, therefore ux हम लिखेंगे किसके बराबर, vx के बराबर, क्यों, because horizontal component of velocity remains constant है, concept based question है, आसान क्वेश्चन है बेटा। तो ux के बदले क्या लिखूंगा बेटा यहाँ, u cos, लेकिन थीटा कितना है यहाँ, थीटा इज एक्चुअली यहाँ 60, और थीटा कितना है यहाँ बेटा, एक्चुअली 60, ये साइन कंपोनेंट है, ये कॉस का, तो यहाँ लिखेंगे ux के बदले क्या लिखेंगे, u cos 60, लेकिन u भी दिया गया है, u कितना है 20, वो भी लिखेंगे। फिलहाल ये vx किसके बराबर है, v cos 45, v cos 45, why, because horizontal component of velocity remains constant in projectile motion। okay, very nice dear students। अब u किसके बराबर है, u ये 20 के बराबर है बेटा, cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, v और cos 45 बेटा होता है 1/√2, यहां लिखेंगे आपकी खातिर, cos 60 होता है बेटा 1/2 और cos 45 होता है 1/√2। ओके, तो यहां मैंने ये दे दिया, सी डियर स्टूडेंट, t1 is 2, t10 is 20, तो बेटा बताइए v किसके बराबर आएगा, ये v किसके बराबर आएगा, यहाँ देखो बेटा ये v आएगा बराबर, यहाँ क्या 2 10 तो 10 लिखो, यहाँ 10 1 is 10, तो यहाँ बेटा क्या है v/√2, तो v किसके बराबर आएगा बेटा बताइए, v here comes out to be as 10√2, क्योंकि डिवाइड करो 1, therefore v is equal to v1 is v 10 into √2 10√2, तो बेटे क्या आ गई v, what is this v, this v now comes out to be as 10√2। okay, very nice। now here dear students, टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप मैं वर्टिकल इक्वेशन लूंगा। इससे पहले कौन सी इक्वेशन क्या मैंने इक्वेट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अब मैं बेटा क्या करूंगा, देखो बेटा क्या करूंगा, देखो now see dear students, we know क्या पता है हमको, that is vy is equal to uy plus ayt। I am using equation of motion along y direction। किसमें यूज की इक्वेशन ऑफ मोशन, y डायरेक्शन में, लेकिन कहां से कहां तक, 0 o to मान लीजिए कि p तक, o to p, जो मैंने किया था ना क्वेश्चन में, वही होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की,
मैथमेटिकल इक्वेशन vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt फ्रॉम दिस टू दिस। तो बताइए vy किसके बराबर है? vy इज हियर बेटा vy किसके बराबर? vy इज हियर v sin 45। आई बात समझ में? तो uy किसके बराबर है बेटा? uy इज u sin 60, बट u किसके बराबर है? 20। तो मैं लिखूंगा ये u sin 60 20 sin 60। क्या लिखूंगा? 20 sin 60। क्या लिखूंगा? क्योंकि u कितना है? u है ना बेटा, u कितना है? इस u का वैल्यू है, इस u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? यहाँ क्या है? 20 sin 60, और यहाँ है बेटा एक्चुअली ये 20 cos, क्या है? 20 cos 60। वही बात समझ में? तो vy क्या लिखी? vy, यहाँ vy लिखा मैंने v sin, ये vy है, वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर टाइम t, v sin 45। और uy कितना है? uy बेटा ये uy है, इनिशियल कंपोनेंट है अलोंग y डायरेक्शन, कितना है? 20 sin 60 प्लस ay कितना है? g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बेटा यहाँ है, यहाँ माइनस g, क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम माइनस जी लेते हैं, तो माइनस देखो यहाँ माइनस और g इज दैट इज टाइम और t। आप क्वेश्चन बन गया, टाइम तो खुद ब खुद निकलेगा। तो v कितना है? v बेटा ये v निकालना है पहले ये v यहाँ है ना, देखो ये v किसके बराबर है बेटा? ये v है 10 रूट 2 साइन 45 किसके बराबर है? 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 20 साइन 60 किसके बराबर है? रूट 3 बाई 2 माइनस j किसके बराबर है? 10 और t। ये जबानी याद रखना बेटा। देखो v हमने निकाला, कितना निकाला था? 10 रूट 2। तो v क्या ले लिया? 10 रूट 2 इंटू साइन 45 किसके बराबर है? 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 20 sin 60 square root 3 by 2 minus 10 g is roughly 10, almost it is 10 dear student, minus 10 into t। अगर 10 है न्यूमेरिकल में तो 10 ही यूज कर, अगर 10 नहीं दिया गया है न्यूमेरिकल में तो 9.8 लिखना। क्या लिखना? 9.8 लिखना, गलती नहीं करना। देखो बेटा आगे t1 is 2, t10 is 20 हो गया हमारा काम। रूट और रूट क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो बेटा बताइए क्या है? देखो बेटा क्या है, देखो तो यहाँ 10 1 10 आ गया बेटा, इज इक्वल टू यहाँ क्या है? 10 रूट 3 और माइनस बेटा यहाँ क्या है? 10t। बेटा इस 10t को यहाँ लेंगे क्योंकि ये t निकाला है, माइनस यहाँ प्लस बनेगा, 10t इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 10 रूट 3, इस 10 को यहाँ लेंगे माइनस 10। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। आ गया हमारा क्वेश्चन बन गया है बेटा। तो 10t लिखेंगे ऐसी, 10 यहाँ कॉमन करो और बेटे यहाँ लिखो अंडर रूट 3 माइनस 1, 10 एंड 10 गेट्स कैंसिल, तो t किसके बराबर है? रूट 3 माइनस 1। ओके वेरी नाइस, दिस इज द टाइम। अगर रूट 3 का वैल्यू भी आपको पता है तो पता होनी चाहिए बेटा, पता होनी चाहिए। रूट 3 किसके बराबर है बेटा? 1.732। अगर ये भी ठीक है इसी लिखो, नो प्रॉब्लम। 1.732 माइनस 1 बेटा ये किसके बराबर आएगा? 0.732 सेकंड। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी वेक्टर 45 बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? कितने टाइम के बाद? 0.732 सेकंड्स के बाद। ओके, होप यू हैव गॉट दिस। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। मैंने इसको देखा है 2-3 बार, किसमें आईपीएमटी में भी लिखा है और बेटा ऐसी क्वेश्चन जी में भी आते हैं और नीट में भी आएंगे। ओके, वेरी नाइस dear students, so you have got this. Now the next concept that I am going to discuss here is like this dear students. Okay, very nice, मजा आ रहा है, बहुत मजा। न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं होते हैं ना बेटा, फंडा क्लियर कर लो और कुछ भी नहीं है। देखो बेटा क्या है, सी डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 हियर, न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे बेटा। देखो क्या है, आसान क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लेकिन फंडा कर रहे हैं, बेसिक सी बातें यहाँ चल रही है, बेसिक सी बातें। लेकिन बेसिक बातों में ही सब कुछ होता है बेटा, बेसिक बातों में सब कुछ होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, वेरी नाइस। सी डियर स्टूडेंट, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 हियर। प्रॉब्लम नंबर 3 इज लाइक दिस। इसमें बहुत क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम नंबर 3 में बहुत क्वेश्चंस है, यहाँ डेवलप हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन यहाँ हमको मिलेंगे। देखो बेटा क्या है, ये अगेन एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन लूंगा और बेटा यहाँ ऐसे मैंने थ्रो की कोई बॉडी ऐसे विद एन एंगल थीटा, तो विद इनिशियल वेलोसिटी u, और ये u का कौन सा कंपोनेंट? u cos थीटा, दैट इज ux। और बेटा y डायरेक्शन में क्या है? ये कौन सा कंपोनेंट है? uy। और बेटा ये किसके बराबर? u sin थीटा। यू आर नोइंग नाउ दीस थिंग्स। ओके, वेरी नाइस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये कहां? एट हाईएस्ट पॉइंट बेटा, दैट इज h max। यहां से यहां तक h max और यहां से यहां तक आपको पता है कि ये रेंज है। अब नो नीड टू डिस्कस दिस। सी डियर, अब क्वेश्चन क्या है कि यहां से यहां तक कितनी चेंज इन स्पीड आ रही है? फाइंड द चेंज इन क्वेश्चन। इफ दिस इज क्वेश्चन, फाइंड चेंज इन स्पीड। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड चेंज इन स्पीड
फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग या पॉइंट ऑफ थ्रोइंग, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाइस्ट पॉइंट, टू द हाइस्ट पॉइंट, टू द हाईएस्ट पॉइंट। क्या बेटा पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा मैंने, क्या मालूम करना है, चेंज इन स्पीड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। अरे इनिशियल में स्पीड क्या है यू, हाईएस्ट में क्या होती है, यहाँ वी वाई होती है 0, लेकिन वी एक्स किसके बराबर होता है, वो होगा ना बेटा यही यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जो यहाँ है यू एक्स वो यू एक्स वी एक्स के बराबर होगा, तो ये क्या होगा यहाँ यू कॉस थीटा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो पता ही चेंज इन स्पीड क्या आएगी बेटा, देयरफॉर चेंज इन स्पीड कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू मान जीपी दैट इज हाईएस्ट पॉइंट। चेंज इन स्पीड कहां से कहां तक, चेंज इन स्पीड दैट इज फ्रॉम कहां से ओ टू पी, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ दैट इज हाईएस्ट पॉइंट। क्या आएगी बेटा पता है, दैट इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड क्या है ये, क्योंकि वी वाई तो है ही नहीं, ये तो 0 है यहाँ, तो लिखेंगे यू कॉस थीटा माइनस यू, दैट इज यहां कॉमन निकालेंगे u, तो अंदर आएगा cos थीटा माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, वेरी इजी। व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वी डोंट हैव टू डील हियर विद द वेक्टर्स देयर, सिंपली लिखो यहां इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या है u cos थीटा, यहां क्या है u, तो u cos थीटा है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज u cos थीटा माइनस u, तो u कॉमन किया तो अंदर क्या रहा cos थीटा माइनस 1। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी में क्या निकालो, अगर ऐसी है, ऐसी बॉडी चलती है विद यू, देखो बेटा विद यू क्या, विद यू क्या प्रोजेक्ट क्या करते हैं यू से और हाईएस्ट पॉइंट पर जाके है ना एंगुलर एट एन एंगल थीटा। देखो बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अगर ऐसी थ्रो की एट एन एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी यू, तो बताइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन, इफ दिस इज सिचुएशन हियर फाइंड, दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। पहले क्या निकाला था, चेंज इन स्पीड, अब क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, वेक्टर में वेक्टर रूल्स यूज होंगे, क्या रूल्स यूज होंगे डियर स्टूडेंट्स, आई विल यूज हियर वेक्टर रूल्स। ओके वेरी नाइस सी डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी नाइस सी डियर। तो बेटा क्या करूंगा यहां, बताए यहां क्या है, अब v है ना वी वाई 0, वी एक्स क्या है यू कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर वी एक्स वेक्टर लिखेंगे तो ये किस डायरेक्शन में है, ये यहां एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, यहां है, यहां ऐसे इस पर क्या डालो बेटा, इस पर यहां डालो, क्या डालो टेंजेंट, एंड दैट विल गिव अस वी एक्स, और वी एक्स किसके बराबर है यू कॉस थीटा, बिकॉज यहां ये इसका कंपोनेंट क्या है यू cos थीटा, एंड दैट इज यू एक्स, एंड यू एक्स इज इक्वल टू, वी नो यू एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, सो ये यू cos थीटा, इसलिए यहां भी यू cos थीटा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी लिखना, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स बेटा डेल वी लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू पी, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रेंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम कहां से, फ्रॉम यहां लिखेंगे आप ओ टू पी। अब आपको पता है कि ओ क्या है, इनिशियल पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। बताए क्या करेंगे, अब इसके लिए सोल्यूशन बेटा, सोल्यूशन क्या करना, डेल वी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, ओ टू पी तक, दैट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। देखो क्या है, फिर ये भी करेंगे, इस पॉइंट तक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं होता है, कंसेप्ट बेस्ड होते हैं सब कुछ, सब कुछ कंसेप्ट बेस्ड होता है। तो डेल क्या है, फाइनल ये है, ये वी एक्स वेक्टर माइनस इनिशियल क्या है, ये यू एक्स है, लेकिन किस डायरेक्शन में लेता हूं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स कंपोनेंट लेकर चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन किस डायरेक्शन में, एक्स, वी एक्स माइनस यू एक्स, किस डायरेक्शन में चेंज पहले देखूंगा, एक्स में, फिर किस में देखूंगा, वाई में, फिर कंबाइन करूंगा एक्स और वाई, वेक्टर तरीके से ऐड करूंगा ना, कंबाइन कर, लेकिन सेपरेट लेना है इक्वेशन, पहले इक्वेशन एक्स फिर वाई लूंगा, लेकिन चेंज से कुछ भी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन देखिए यहां दिखाएंगे डेल वी एक्स, तो ये आएगा वी एक्स वेक्टर यहां बेटा, ये लिखेंगे यू cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, यहां है आई कैप, एक्स डायरेक्शन में क्या डायरेक्शन होती है, आई कैप से यहां मल्टीप्लाई करो,
Now this velocity vector has magnitude u cos theta, but direction is along horizontal, that is along x axis. तो I कैप से जरा किया, तो ये भी क्या आएगा, ये ux किसके बराबर, ये ux है, ये क्या है बेटा ux का मैग्नीट्यूड। लेकिन आप इसका ux वेक्टर लिखेंगे ux तो किसके बराबर आएगा, ये भी किस डायरेक्शन में है, यहाँ क्या है I कैप है, तो I कैप इज यूनिट वेक्टर along x axis, तो यहाँ लिखेंगे u cos थीटा, यही u cos थीटा लिखेंगे बेटा, यही u cos थीटा, लेकिन आप किससे जरब करेंगे I से, तो फाइनल एंड इनिशियल सेम, तो vx क्या लिखेंगे यहां बेटा u cos थीटा I कैप माइनस u cos थीटा I कैप, क्योंकि vx भी u cos थीटा I कैप है और ux वेक्टर भी u cos थीटा I कैप है, तो ये और ये कैंसिल, तो व्हाट चेंज क्या आगे, जीरो, नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने दिखाया भी आपको, क्यों दिखाया, क्योंकि आपसे इसका इत्मीनान बढ़ जाएगा, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, मजा आएगा आपको, क्या ये सच है झूठ, देखा कुछ। आप क्या कर रहे हैं, तो नो आप करेंगे एक्स डायरेक्शन में, क्या चेंज देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, बिकॉज इट इज 2D मोशन, 2D मोशन में एक्स की सेपरेट करनी होती है और वाई की सेपरेट, फिर कंबाइन करना होता है एक्स और वाई को बाय वेक्टर रूल्स। ओके, आई बात समझ में। अब चेंज किस डायरेक्शन में देखिए, डेल वी वाई चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम कहां से कहां तक, ओ टू पी, ओ टू पी, तो वो क्या आएगा बेटा, वे आएगा वी वाई फाइनल, लेकिन वी वाई क्या है जीरो, लेकिन लिखेंगे वी वाई माइनस यू वाई, लेकिन फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर देखो बेटा क्या है, तो ये वी वाई क्या है बेटा जीरो, वी वाई वेक्टर क्या है जीरो, जीरो वेक्टर है, तो माइनस यू वाई क्या है, यू वाई किसके बराबर है, अरे बेटा यू वाई होता है यू साइन थीटा, क्या होता है यू साइन थीटा, लेकिन अगर वेक्टर तरीके से लिखेंगे तो यू वाई वेक्टर क्या लिखेंगे, यू वाई वेक्टर बेटा बता क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, लेकिन यहां जी कैप होती है ना, जी कैप से जरब दे दो, by multiplying it to the magnitude by j cap it will become a vector, that is ui vector. Now this ui vector has both magnitude as well as direction, it is the component of velocity vector along y direction, initial velocity vector u sin theta into j cap, लेकिन magnitude अगर लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे magnitude uy is equal to u sin theta, लेकिन अगर वेक्टर तरीके से लिखेंगे u sin theta, लेकिन डायरेक्शन क्या है j cap, u sin theta j cap, मर माइनस है यहां, तो therefore डेल्टा y क्या आ गया, डेल्टा वी वाई चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बट इन वाई डायरेक्शन, डेल्टा वी वाई डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, वो माइनस यू साइन थीटा जे कैप, ये है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या आ गई जीरो, तो सिर्फ चेंज क्या आ रही है वाई डायरेक्शन में, मैं तो लिखूंगा ना सीधे बेटा, देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी is equal to change in velocity vector along y direction, यहां लिखेंगे change in velocity vector along x direction और प्लस change in velocity along y direction, लेकिन ये चेंज क्या आ रही है जीरो, ये चेंज कितनी आ रही है माइनस यू साइन थीटा जी कैप, तो बताइए डेल वी वेक्टर कितना आ गया माइनस यू साइन थीटा जी कैप, बताइए चेंज किस डायरेक्शन में आ गई, डाउनवर्ड में है चेंज यहां डाउनवर्ड में है, क्यों माइनस का मतलब है कहां, चेंज की डायरेक्शन कहां है डाउनवर्ड्स, मैग्नीट्यूड कितना आएगा मैग्नीट्यूड बता, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डेल वी का मैग्नीट्यूड बेटा आएगा, मैंने आपको कहा ना कि यहां जे का कोएफिशिएंट क्या है, वो अंडर रूट में ले लो और जे का कोएफिशिएंट क्या है माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा यू स्क्वायर, वो अंडर रूट आएगा यू स्क्वायर साइन यू, वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वो किसके बराबर आएगा बेटा बताइए, किसके बराबर आएगा यहाँ, तो मैग्नीट्यूड डेल भी किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा सीधे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड तो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बट दिस इज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इतना है लेकिन माइनस जे, यहाँ ये एक्चुअली माइनस है ना, माइनस जे मींस चेंज इन वेलोसिटी, पता है चेंज इन वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में या प्लस वाई डायरेक्शन में या डाउन या माइनस वाई डायरेक्शन, ये भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं किसमें, नीट और जे में, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझो आसान है ना, मजेदार चीज। अगर चेंज इन मोमेंटम कहेंगे, अगर चेंज इन मोमेंटम बताया यहाँ चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज द चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकल गई तो एम से मल्टीप्लाई करो, ओके डियर बता चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम सिर्फ क्या करना है इसको, चेंज इन मोमेंटम यहां क्या लिखना है बेटा माइनस, ये भी माइनस आएगा लेकिन एम से मल्टीप्लाई करो, एम यू साइन थीटा जी कैप, डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है ना,
आई बात समझ में? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्वेश्चन आया था नीट में, जेई में भी आते हैं ये क्वेश्चन। कैसा लगा बेटा आपको? आसान, बहुत आसान। सी डियर, ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ओके ओके डियर स्टूडेंट। देखो बेटा क्या, तो बताइए यहां डेल्टा पी ये आ गया, तो डेल्टा पी का ये अगर नहीं, अगर डेल्टा पी का वेक्टर लिखेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना चेंज इन मोमेंटम का, वो क्या आएगा? ये चेंज इन मोमेंटम है। क्या है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्या है बेटा? चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस। ओके, वेरी नाइस। अब इसका क्या है? अंडर रूट ले लो। जे कैप का ये क्या है? माइनस एम यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस, क्या यही आएगा? एम यू साइन थीटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी रूट में, ठीक है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या आएगा? एम यू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड डेल पी, जो डेल पी मैंने बेटा यहां लिखा ना, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये किसमें था? डायरेक्शन। और चेंज इन मोमेंटम कहां है? यहां कोई कहेगा कह रही यहां से यहां तक चीज, आप कहेंगे यहां डाउनवर्ड्स, नेगेटिव जे की तरह। चेंज इन मोमेंटम कहां आ रही है? ना डाउनवर्ड्स। क्यों डाउनवर्ड्स आ रही है? क्योंकि डाउनवर्ड्स इज फोर्स, वो डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स है ना डाउनवर्ड्स। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? बहुत आसान, मजेदार, कुछ भी नहीं है, समझ लो। फिजिक्स, फिजिक्स एक ड्रामा है, फिजिक्स एक क्या है? पैशन होना चाहिए बेटा, पैशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। नीट क्वालिफाई करोगे, एडवांस में जाओ, आईआईटी क्वालिफाई करो। बेटा मेरी यही दुआ है कि आप मेरे बच्चे आईआईटी में जाए, कोरोना का इलाज करें मेरे बच्चे। ओके, वेरी नाइस। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट हियर डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अब चेंज इन मोमेंटम यहां से यहां तक निकालो, चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां तक निकालो, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। निकालोगे? निकालोगे या नहीं निकालोगे? निकालो। देखो बेटा क्या है, बहुत आसान काम, बहुत आसान सा काम। अब यहां इसी क्वेश्चन में क्या निकालो? आप क्या निकालो? देखो बेटे क्या है, सी डियर नाउ, देखो बेटे क्या है, अभी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन होंगे ना इसी में, एक ही क्वेश्चन में। अरे क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालो, सुपर 30 सुना है ऋतिक रोशन कहता है ना कि क्वेश्चन में क्वेश्चन निकालो बेटे। यहाँ तो यहाँ एक्स डायरेक्शन है ना बेटे, एक्स डायरेक्शन। ओके, हमने प्रोजेक्ट किया ऐसी बेटे प्रोजेक्ट किया, ये वाला एक्सिस है, एमएस एम। ओके, यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ आप देखो, हमने पहले क्या देखा? फ्रॉम ओ टू पी। अब चीज देखो, ओ टू, यहाँ लिखो कुछ क्यू, ओ टू क्यू चेंज। देखो, इफ यू हैव लॉन्च्ड दिस विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड हियर मेक्स एन एंगल थीटा, तो बेटे ये u cos थीटा है, और ये कौन सा कंपोनेंट है? u sin थीटा। लेकिन अगर वेक्टर में लिखोगे तो i कैप, अगर वेक्टर में लिखोगे तो यहां मल्टीप्लाई करो j कैप। Now both magnitude as in direction, because when direction is multiplied to the magnitude, it becomes a vector. When magnitude of component, this is uy. This is uy vector in fact now. Now this is ux vector now, because both magnitude as well as direction. अब आई बात समझ में? देखो बेटे यहाँ क्या है, मैंने आपको बताया ना कि जब यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, ये सेम रहेगा यहाँ, जो मैंने आपको I have already told you about that. This is vx. देखो बेटे यहाँ क्या है, यहाँ अब टेंजेंट डालो, एंड दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी। और ये क्या है यहाँ वर्टिकली, तो ये बेटा ये वी है। क्या है बेटा? वी वाई। क्या है? वी वाई। ये वी वाई है फाइनल, और ये वी एक्स है फाइनल, ये वी। ओके, आई बात समझ में? देखो क्या है, मैंने ऑलरेडी डिराइव किया, याद है कि वी एक्स दैट इज यू एक्स एंड वी एक्स दे विल नॉट चेंज, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पता है ये किसके बराबर आएगा? वी एक्स, ये आएगा यहाँ u cos थीटा i कैप, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज, दैट इज इन द सेम, बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज किसमें आ रही है? मैंने कहा था ना कि जितनी वेलोसिटी से आप वर्टिकल से यहाँ बेटा लॉन्च करोगे ना, इतनी ही जब वापस आएगी इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा। मैंने ड्राइव की थी एक्सप्रेशन इसके लिए। तो बेटे ये किसके बराबर आएगा? लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आएगा यहाँ, क्या? यही u sin थीटा, लेकिन माइनस जे कैप। क्यों? नीचे माइनस जे कैप है डायरेक्शन। तो वी वाई वेक्टर किसके बराबर आएगा? u sin थीटा माइनस जे कैप। तो मैं लिखूंगा इसको यहां किसके बराबर बेटा? माइनस u sin थीटा जे कैप। बताओ चेंज इन वेलोसिटी, कोई इस क्वेश्चन में कोई बताए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक? फ्रॉम O टू, यहां लिखो कुछ Q, फ्रॉम O टू Q,
फ्रॉम ओ टू क्यू, क्या मैडम करो, फाइंड फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड क्या करो, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू क्यू, ओ टू क्यू निकालना आएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या है किस डायरेक्शन में, जीरो, तो सिर्फ आपको क्या चेंज निकालनी है, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट है। सो चेंज क्या आएगी, जीरो, तो आनी चेंज किस पर है, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन को चेंज आ रहे हैं। तो देखो ये क्या होगी चेंज, तो सीधे सीधे लिखेंगे ना डेल वी, डेल वी मीन चेंज इन वो सिर्फ वाई में आ रही है। तो फाइनल वाई क्या है, वी वाई माइनस इनिशियल क्या है, ये है यू वाई वेक्टर, ये यू वाई वेक्टर है बेटा, यू वाई वेक्टर, यहां ये यू वाई वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो यू वाई वेक्टर, तो वी वाई किसके बराबर है, माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू वाई किसके बराबर, यहां जी क्या है, जी क्या है, जी क्या है, माइनस बेटा ये क्या लो, यहां लोगे आप यू साइन थीटा, लेकिन यहां क्या है बेटा, देखो बेटा क्या है, यहां जी क्या है ना, माइनस किया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो नेगेटिव है लेकिन इनिशियल तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव जे में है, ये प्लस जे में है, तो बता कितना आएगा चेंज, बता चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी बेटा बताइए, वो आएगी यहां माइनस यू साइन थीटा जे, माइनस वो आएगी माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप। This is change in velocity from this point to this. बताइए change in momentum किस डायरेक्शन में होगा, the change in momentum is along the change in velocity, वो क्या है, वो डाउनवर्ड से। कोई कहेगा change in velocity कहाँ है, क्योंकि J यहाँ ये है एक्चुअली 2u sin theta minus J, तो डायरेक्शन ऑफ del V is along the direction of minus J। चेंज कहाँ है, नीचे, क्यों चेंज वहां है, क्योंकि चेंज वहां मोमेंटम की हो रहा है, मोमेंटम की हो रही है, देखो बेटा del V, अगर डेल बी की आपको पता है तो पी की भी चलेगी ना पता, तो पी किसके, पी चेंज इन डेल बी क्या आएगी, दैट इज एम इंटू डेल वी, डेल बी क्या आएगी, एम इंटू डेल वी, सिर्फ मैथ से ऑब्जर्व करना है, तो किसके बराबर आएगा यार, मैथ से ऑब्जर्व करो, तो ये बनेगा एम टू यू साइन थीटा माइनस जी, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, एम टू यू साइन थीटा माइनस जे कैप, माइनस क्या है बेटा, जे कैप। ओके वेरी नाइस, बात आई समझ में, नहीं आई बात समझ में, तो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन कहां है, डेल पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, दैट इज तो यहां लिखो 2mu साइन थीटा माइनस जे, तो जहां जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होती है ना, इसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम भी होता है। द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, बट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ओनली अप्लाइड फोर्स हियर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए यहां नीचे माइनस जी। आई बात समझ में, डायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स स्ट्रांग करो तो काइनेमेटिक डायनेमिक्स भी आएगी, डायनेमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी तो वर्क पावर एंड एनर्जी भी आएगी, वर्क पावर एंड एनर्जी स्ट्रांग हो तो सब कुछ आएगा ना, आगे आगे ग्रेविटेशन आएगा, आगे जो है ना फ्लूइड डायनेमिक्स भी सब कुछ आएगा। ओके वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके डियर, आई बात समझ में, ओके वेरी नाइस, सी डियर मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बाबा, बहुत मजा, ओके वेरी नाइस, सी डियर। अब यहां मैं थोड़ा कंसेप्ट डेवलप करूंगा, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, सी डियर देखो बेटा क्या करेंगे यहां, देखो अब आसान कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स, इजी कॉन्सेप्ट्स। देखो बेटा क्या है, अगर मैं यहां मैंने प्रोजेक्ट किया, लेकिन मैं अब लिखूंगा कि व्यू जो है ना, यू दिस यू इज नाउ, सी नाउ अब क्या है, थीटा विद वर्टिकल, थीटा विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल, इसे पहले पाते थे कि विद वर्ट हॉरिजॉन्टल, लेकिन अब मैंने यहां चेंज की, थोड़ा चेंज लाई कि यू वेक्टर बनाता है एंगल थीटा विद व्हाट एक्सिस, विद वाई एक्सिस। तो पता है इक्वेशन अब यहां क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, रेंज क्या आएगा, क्या चेंजेस आएंगे, देखो बेटा आसान है, थीटा नाउ विद वर्टिकल, बताओ पहले इक्वेशन क्या आएगी इस प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन ये है, बता अगर थीटा ये होता, अगर थीटा ये होता थीटा, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, वाई याद है बेटा, नहीं याद है या नहीं है, देखो बेटा क्या है, यहां था ऐसे एक्स टेन थीटा था ना, एक्स टेन थीटा माइनस क्या था यहां बेटा, 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी था कॉस स्क्वायर थीटा, था या नहीं था, हाँ यही था। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जबान याद करनी थी। अब थीटा क्या है, थीटा तो ये किसके साथ है, ये थीटा था विद
विद हॉरिजॉन्टल। नाउ मैंने चेंज की सिचुएशन, मैंने थीटा किसके साथ लिया, वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, तो क्या बनेगी इक्वेशन, देखो यहां लिखना है ये कितना, अगर यहां थीटा ये कितना आया, फिर 90 माइनस थीटा, बताओ। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एंगुलर प्रोजेक्शन क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 90 माइनस थीटा। if you makes an angle theta with y direction, then for b people at that time the angle of projection is 90 minus theta। तो यहां क्या लगा दो, यहां इस केस में थीटा के बदले क्या लिखो, 90 minus थीटा। ओके, वेरी नाइस। y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x tan बेटा लिखो, यहां थीटा के बदले क्या लिखो, 90 minus थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के बदले अगेन लिखो क्या बेटा, 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में, आसान सा क्वेश्चन, आसान कॉन्सेप्ट से है, लेकिन थोड़ा डेवलप करो ध्यान, कुछ भी नहीं होता है। y इज इक्वल टू एक्स tan 90 माइनस थीटा, बेटा tan 90 माइनस थीटा जबानी याद होनी चाहिए। tan 90 माइनस थीटा होता है बेटा cot थीटा के बराबर, किसके बराबर, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। देखो बेटा, तो x यहां क्या आएगा, ये cot थीटा के बराबर माइनस 1/2 बेटा, यहां ये जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बेटा किसके बराबर है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, यहां किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। लेकिन ये किसके लिए थी, when theta is formed with horizontal, but when theta is formed with vertical, तो ये बनेगी इक्वेशन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, आसान आसान काम बेटा, आसान काम। देखो देखो तमाशा। अब टाइम ऑफ क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, देखो बेटा क्या है। दूसरी बात, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, याद है। अरे जबानी याद करो, फार्मूला जबानी याद होनी चाहिए, स्पीड बढ़ाओ। तो बेटा टी किसके बराबर है, 2u sin थीटा बाई जी। अगर थीटा क्या, थीटा को क्या लिखना है, अब हमारे लिए थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा। तो बेटा यहां थीटा लिखो बेटा, हमारे लिए क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे। तो देयरफॉर टी किसके बराबर आएगा, 2u sin, यहां लिखेंगे थीटा के बदले क्या, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमारे लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब बन गया 90 माइनस थीटा। डिवाइड बाई बेटे क्या है, जी। तो पता बेटा किसके बराबर आएगा, टी इज इक्वल टू 2u sin 90 माइनस थीटा बेटा आएगा cos थीटा के बराबर, तो डिवाइड बाई जी। बताइए किसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, व्हेन वी प्रोजेक्ट अ बॉडी मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल। आई बात समझ में, छोड़ा बात आई समझ में, आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप क्या निकालो, इसके बाद क्या निकालो बेटा, इसके बाद निकालो मैक्सिमम हाइट, क्या निकालो मैक्सिमम हाइट के लिए। थर्ड पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट। बताओ मैक्सिमम हाइट के लिए क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या, बता पहले मैक्सिमम हाइट की फार्मूला पता होनी चाहिए, क्या है फार्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो थीटा के बदले क्या दे दो, यहां भी थीटा के बदले क्या ले लो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो थीटा के बदले बेटा लिखेंगे 90 माइनस थीटा। बता क्या आएगा, एच आएगा बराबर बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 90 माइनस थीटा, यहां स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। बता बेटा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, ये एक्चुअली साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर है। साइन 90 माइनस, पहले बता साइन 90 माइनस थीटा किसके होता है, साइन 90 माइनस थीटा बेटा ये होता है cos थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, इस पर यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, बताइए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे cos से, बिकॉज़ sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, लेकिन यहाँ क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे डिवाइड बाई 2g। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गई, मैक्सिमम हाइट के लिए। अब एक यहाँ है रेंज में कुछ फर्क आ रही है, रेंज में क्या है कोई बताएगा, बता रेंज। आप सिर्फ कहोगे कि साइन को कास में चेंज करो तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये रेंज के लिए बेटा वायलेट नहीं है। देखो रेंज, रेंज क्या है, रेंज हमको पता है कि दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज होता है। रेंज की एक्सप्रेशन क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो बेटे क्या है, आपके यहां भी थीटा क्या लिखना है, यहां भी थीटा क्या लिखो, थीटा टेंड्स टू क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो बेटे देयरफॉर आर किसके बराबर आएगा, आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बदले क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह है हमारे लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। डिवाइड पे क्या करेंगे जी, बेटा बताइए क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2, ये 2 यहां इसके साथ भी ज़ारा है और इसके साथ भी 2 लिखो, यहां 2 0 0 2 9 18 हो गया ना,
अब 2 को किसके साथ जरब दो, थीटा के साथ, -2 थीटा। मैंने 2 को 90 के साथ भी जरब दे दिया, मैंने 2 को थीटा के साथ भी जरब दिया दिया, तो ये 2 90 और 180 -2 इंटू थीटा -2 थीटा। डिवाइड बेटा क्या है जी। लेकिन देखो बेटा क्या है यहाँ साइन 180 माइनस थीटा होता है बराबर साइन थीटा, याद रखना। क्वाड्रेंटस भी, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा फॉर्मूला है किसके बराबर है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर आएगा बेटा, बताइए किसके बराबर आएगा। ये आएगा, ये यहाँ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज है, सॉरी रेंज। तो रेंज किसके बराबर आएगा, यहाँ यू स्क्वायर, यहाँ साइन है, सॉरी यू स्क्वायर साइन है ना, यहाँ साइन भी था, साइन यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या आएगा, दैट इज साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ 2 थीटा तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। अरे यहाँ दोनों केसों में सेम आया, पहले यहाँ का आसपास कुछ नहीं है, देखो चाहे ये थीटा वर्टिकल के साथ बनाए या थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए, तो दोनों सूत्रों में रेंज क्या आता है, सेम। क्योंकि ये पहले के लिए था रेंज, जब व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा, ऐसे बेटा देखो बेटा, ये पहले केस के लिए था। अगर हम लॉन्च ऐसे करते इसको, देखो अगर ऐसे पहले केस के लिए थीटा, तो इस वक्त क्या रेंज, जो स्क्वायर साइन 2 थीटा बेटी। लेकिन दूसरे केस के लिए हमने यही थीटा, इसके लिए भी यही आया, cos 2 थीटा नहीं आया है। सोचने की बात है अच्छी, क्यों, क्योंकि एक्चुअली यहाँ 180 आया, 180 से क्या, 180 तो चेंज नहीं है, साइन कॉस में नहीं चेंज हो रहा है, साइन ही रहता है। ओके वेरी नाइस, हैव यू गॉट दिस। और ऐसे ही चलो बेटा और भी बनाओ, प्लेन पर करो, घर में ट्राई करो प्लेन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन बहुत आसान है। लेकिन एक और कंसेप्ट दूंगा यहाँ आखिर में, एक और कंसेप्ट देखो बेटा क्या लास्ट में, एक और कंसेप्ट डियर स्टूडेंट, सी डियर एक और कंसेप्ट आखिर में देंगे आपको, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखो बेटा क्या है, एक और कंसेप्ट, नोट दिस कंसेप्ट अगेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। अगर हम यहां रेंज इज सेम फॉर, यहां लिखेंगे रेंज इज सेम फॉर हॉरिजॉन्टल, रेंज इज सेम फॉर हॉरिजॉन्टल, रेंज इज सेम फॉर complementary angles, complementary angles of projection, complementary angles of projection। देखो बेटे क्या है, देखो बेटे क्या लिखा है मैंने, horizontal range is same for complementary angles of projection, दिखाएगी बेटा। देखो क्या है, अगर हम यहां ऐसा लेंगे, देखो बेटा क्या है, मान लीजिए कि मैंने यहां प्रोजेक्ट किया पहली बॉडी एट एन एंगल 60, देखो यहां ऐसे देखो बेटा, सपोज ऐसे मैंने कोई प्रोजेक्ट किया ऐसे, और यहां देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये रेंज है, यहां से मैंने सपोज यहां क्या इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी यू, सेम इनिशियल वेलोसिटी लेके थीटा कितना 60, और दूसरी सूरत में मैंने यहां बेटा कितना दे दिया 30, यहां 30, सेकंड केस में 30। पहले केस के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था 60, दूसरे केस के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ये वाला, ये है 30, ये यहां से यहां 60। लेकिन दोनों का रेंज सेम होता है, क्यों, बिकॉज 60 एंड 30, 60 प्लस 30 दैट इज देयर सम इज 90, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए इफ इनिशियल वेलोसिटी सेम, देखो बेटा देन इसके लिए क्या होता है, देन दे हैव सेम रेंज, क्या रेंज क्या होता है, सेम। ऐसी बेटा यहां एक और एग्जांपल लेंगे, सपोज यहां मैं सपोज मैंने यहां एक बॉडी यहां बेटा 40 एंगल से 40, और दूसरी बॉडी एक और ये 50 एंगल से, दोनों का अगर सेम इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों की सेम है यू, तो पहला कितना बना था 40, लेकिन दूसरा कितना बनाता है 50, ये 50 बनाता था, ये 40, लेकिन दोनों का रेंज क्या आता है, सेम, क्यों, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90, ये मैं समझाऊंगा। अब देखो तमाश कैसे, देखो बेटा देखो कैसे, अगर मैं बेटा ऐसे करूंगा, ये मैं एक्स एक्सिस और ये बेटा वाई एक्सिस, यहां बेटा देखो क्या है, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग ए बॉडी हियर एट एंगल थीटा, ओके वेरी नाइस डियर, सी थीटा एंड 90 माइनस थीटा घर में करना, इनके लिए भी बेटे क्या होता है, दैट इज रेंज फॉर देम इज सेम बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90,
90 minus theta and theta are complementary, और 45 plus theta and 45 minus theta they are also complementary. इसके लिए भी बेटा क्या है रेट सेम, घर में देखना क्योंकि ट्राई करना घर में, इस वक्त टाइम हो गया, इंशाल्लाह मिलते नेक्स्ट टाइम, टिल ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, ओके वेरी नाइस.